Good morning, all of you. Today we start the first lesson, 7th standard, sources of history. Now, what is the meaning of sources of history? Sources of history means we get so much information about the history from the which one sources. There is a material sources are there, then written sources are there, oral sources are there. We get all the information about history. Which one things are happened in the before independent, after independent, that all things we get the information from the sources of history. Now see, history give us the chronological, scientific and systematic account of past event. मतलब हिस्ट्री हमें है ना बहुत सारे सिस्टमेटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मीन्स सीरियली विच वन थिंग्स आर हैपेंड ऑन विच इवेंट, मतलब कौन से सन में कौन से साल में क्या हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री क्या करता है, देता है. और एज ए डेट के हिसाब से हमें वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है. एंड विच वन थिंग्स आर हैपेंड इन पास्ट, मतलब जो भूतकाल में होके गए उसका हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन हिस्ट्री हमें देता है. 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ द हिस्ट्री. और सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है, कौन कौन से? देर इज अ सोसाइटी, then place are there, then timing, and history must be based on the authentic evidence. मतलब हिस्ट्री हम जब भी पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एविडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ देर इज नो एविडेंस देन वी कैन नॉट बिलीव ऑन दैट हिस्ट्री. मतलब कोई एविडेंस नहीं रहेगा तो हम लोग उस हिस्ट्री के ऊपर क्या नहीं करते, भरोसा नहीं करते. दैट्स वाई एविडेंस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री. नाउ दिस प्रूफ आर नोन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और जो प्रूफ हमें मिलता है हिस्ट्री के लिए उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. लेट अस क्लासिफाई दिस सोर्सेज इनटू द मटेरियल सोर्सेज. एंड आई बिफोर द लेसन आई टेल यू देर इज अ मटेरियल सोर्सेज आर देयर, देन रिटर्न sources are there and oral sources are there. Now to learn more about them, let us evaluate the sources of history. Now we have considered many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with the social historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use the sources drastically and only after the critical analysis. मतलब कोई भी sources हम लोग हिस्ट्री का पढ़ते हैं तो उसको सबसे पहले वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है और बाद में उसका पढ़ाई करना ज़रूरी है. इफ़ यू लर्न द हिस्ट्री, सो मच हिस्ट्रीज आर देयर, सम हिस्ट्रीज आर ट्रूथफुल एंड सम हिस्ट्रीज आर मतलब फेक इज देयर, मतलब देयर इज अ नो ट्रूथ इज देयर. मतलब कोई हिस्ट्री क्या होता है उसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते. देयर इज सो मच मीन्स unreason, मतलब they not clarify all the things in that history. That's why which one history you have to learn, that history give you proper reason why this happened. Then there is a critical analysis is there, मतलब उन्होंने analysis भी करना जरूरी है. that is history is truth history. Now see, the fort have an important place among the material sources. अभी फोर्ट है, फोर्ट मीन्स किला, उसको बहुत इंपॉर्टेंस है किसमें, material sources में. Some major types of forts are hill forts are there, then sea forts are there, then forest forts and forts on the plain. Now monuments include the samadhis, grave, virgla, and buildings include the places, ministerial mansion, queen quarters, and also the house of the common people. अभी ये सब चीज़ें हमें क्या करती है, हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है. नाउ मटेरियल सोर्सेज, विच थिंग्स आर इंक्लूड इन द मटेरियल सोर्सेज. नाउ सी, मेमोरीज, बिल्डिंग, cave sculpture, then inscription, coins, copper plate and fort. These things are included in the material sources. All provide insight about the period. Looking at them, we come together about the development of archaeology. मतलब हम लोग को मालूम है archaeology के कारण क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. The economical condition and the quality of the art, the style of the buildings also increase. Now some see, in the ancient time there is no proper way of structure of building, but now you can see there is a circle style building is there, then L shape, then circle shape, then oval shape, any types of any shape buildings are there, means structure is there. Why? Because of the development in archaeology. मतलब archaeology में development होने के कारण ये सब changes आ गए हैं. Now see,
द कॉइन्स मेड बाय द डिफरेंट रूलर यूजिंग द मेटल लाइक गोल्ड, मतलब कॉइन्स बनाने के लिए डिफरेंट रूलर्स क्या क्या यूज करते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. From this coin we learn about the ruler, their period, governors and religions and ideas. Now personal detail etc. Similarly we also learn about the financial transaction and economic condition prevailing at the time. We also see how many metallurgy had advanced in the period, मतलब उस टाइम का मेटोलॉजी कितना एडवांस था. हाउ दे प्रिपेयर्ड द कॉइन विद द हेल्प ऑफ दैट गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर प्लेट, मतलब उससे वो लोग कैसे प्रिपेयर करते थे मेटल, एंड हु इज द किंग इन दैट पीरियड, दैट ऑल इंफॉर्मेशन वी गेट from the coin. Now from the image of the Sita and Ram on the coin, Empire Akbar or Shiva Parvati on the coins, Hyder Ali, we see the religious coordination of those day, मतलब उस टाइम कौन से रिलीजन थे उसका भी हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम द कॉइन. नाउ द पेशवाज यूज द अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज ऑन द कॉइन, और पेशवे कौन से लैंग्वेज यूज करते थे, पर्शियन एंड अरेबियन. नाउ सी दिस और इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द कॉइन, विच वन लैंग्वेज दे यूज इन द कम्युनिकेशन, दिस थ्रू लाइट ऑन दिस यूज ऑफ द लैंग्वेज इन दैट पीरियड, और इससे हम लोग को उस टाइम कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता था इसके बारे में क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है. इन द इंस्क्रिप्शन इन द क्रेविंग ऑन द स्टोन, मतलब स्टोन के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्क्रैविंग ऑन द स्टोन ऑन अ वॉल, द एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन द तांजूर, मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ द चालुक्यस, मतलब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन उन्होंने क्या किए थे, स्टोन पे भी लिखा था. दैट्स वाई वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट which types of whose empire is there, who is the king in that time, that all information we get, and which one family's empire is there, matlab Chalukya, then Rashtrakoot, Yadav, who is the king is found in that period, that all information we get from the stone sculpture. Now inscription is considered to be the very important and reliable sources of history. It helps us to understand the feature like a language, script, social life of the period. Inscription carved on the sheet of the copper known as a copper plate, royal edict, Vedic are the inscription on the copper plate, मतलब copper plate के ऊपर भी क्या होता था, inscription लिखा जाता था. Now there is a written sources is there. What is the written sources is there? In a written sources which things are included? In a written sources there is the biographies of the philosophers are there, biographies of empire is there, then there is a justical system is there, then the periodical table is there. Now we are going to learn the written sources is there. We learn about the significant historical event in the medieval period from the sources like a written style of the script like a Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. from the various different language. Bhujapatra, religious manuscript, then treasures, edict, degrees, biographies, painting. We can gather information about the food item and invention of the ruler, conduct, people, festival and about the people etc. life. Now जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन, बाद में मैन्युस्क्रिप्ट, बाद में अरेबिक, देन पर्शियन, देवनागरी लैंग्वेज, इससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि उस टाइम का लैंग्वेज कैसा था, बाद में उस टाइम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, कितने रिलीजन्स के, कितने कास्ट के पीपल्स थे, देन पेंटिंग, फ्रॉम द पेंटिंग बायोग्राफी, उससे हम लोग को उस टाइम का रूलर कौन था ये मालूम पड़ता था. एंड विच टाइप्स ऑफ क्लोथ दे वेयर, मतलब वो कौन से क्लोथ पहनते थे, एंड विच ऑर्नामेंट दे यूज इन देयर डेली लाइफ, कौन से ऑर्नामेंट वो डेली लाइफ में यूज करते थे. दैट ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम द रिटर्न सोर्सेस. नाउ ऑल ऑफ यू सी, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रैवलर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज केम टू इंडिया, मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स वो क्या होते थे उस टाइम इंडिया में आते थे. दे हैव रिटर्न ट्रैवलिजियस और अकाउंट ऑफ देयर ट्रैवल. सम ऑफ देम आर अल बुरानी, बुट्टा, निकोलो मुनेसी एंड बाबर्स बायोग्राफी.
श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफर ऑफ शिवाजी महाराज कंपोज बाय द पोएट परमानंद। मतलब शिवाजी महाराज का जो भी बायोग्राफी संस्कृत में लिखा था वो पोएट परमानंद ने लिखा था, एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफी ऑफ डिफरेंट रूलर and the correspondence help us to understand the policy and administrative system of the ruler, their diplomatic relation with the other। मतलब ये सब रूलर्स जो देखो ये उर्दू लैंग्वेज में जो भी लिखा था हिस्ट्री में, तो वो हम लोग को पढ़ना जरूरी नहीं था क्या था, लेकिन वो हमें लैंग्वेज मालूम नहीं है, तो उसके जो पोएट है दूसरे, तो उन्होंने हिस्ट्री का जो भी उर्दू था वो क्या किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया, संस्कृत में ट्रांसलेट किया। अभी शिवाजी महाराज का जो भी बायोग्राफी है वो परमानंद ने संस्कृत में ट्रांसलेट किया, इसलिए लोगों के बारे में शिवाजी महाराज कैसे राजा थे एंड शिवाजी महाराज कैसे राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे था, वो लोगों को किस तरह से ट्रीट करते थे, वो सब इंफॉर्मेशन मिलती है। बाद में जो अकबर का बाबर का जो बायोग्राफी है वो भी पोएट ने लिखा था, तो उसके बारे में भी उनको क्या होता था, वो पर्सनल उसका लाइफ क्या था, वो किस तरह से लोगों से बिहेव करता था, वो सब चीज़ें उनको क्या होती थी, मालूम पड़ती थी फ्रॉम द बायोग्राफीज। नाउ तवरीक एंड तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। मतलब तवरीक मतलब तारीखी, सीक्वेंस मीन्स डेट इज देयर। तवरीक रिटन बाय द अल बुरानी, मतलब तवरीक को अल बुरानी ने लिखा था, जुद्दीन बरानी, मौलाना अहमद यहाँ बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना, ETC आर अवेलेबल। मतलब ये सब लोगों ने मिलके तवरीक और तारीख इसमें क्या किया था, लिखा था। नाउ बकर इज अ टाइप ऑफ द क्रोनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। बकर ये एक है ना क्रोनिकल है, और वो किधर ओरिजिनेट हुआ था, महाराष्ट्र में। क्रोनिकल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सेप्ट लाइक द कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग, लेजिस्लेटिव ट्रांजिशन, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशन। मतलब जो क्रोनिकल है ना, क्रोनिकल हेल्प अंडरस्टैंडिंग द एक्सेप्ट लाइक अ कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग, मतलब पॉलिटिकल्स क्या होता था उस टाइम, बाद में कल्चरल लाइफ कैसा था, देन लेजिस्लेटिव ट्रांसलेशन, ये सब सोशल कंडीशन उस टाइम कैसा था, इसका सबका इंफॉर्मेशन क्रोनिकल देता था। आफ्टर मैंने नाउ सोशल कंडीशन, मेनी क्रोनिकल इन द मराठी वेर रिटन मेनी ईयर आफ्टर द इवेंट हैड एक्यूर। मतलब बहुत सारे क्रोनिकल मराठी में लिखे गए थे वो चीज़ें हैपेंड होने के बाद। नाउ as a result they are seen to rely on a hearsay. Some of these chronicle are माई कवतीची बकर, सभासाद बकर, देन चितनीची बकर, देन बुले साहबी बकर. This work is contemporary Western historical like Robert Arm, then MCS Megal and Grant Duff are also important. मतलब ये सब बकर थी, और उसमें क्या होता था, उसका कल्चर कैसा था उस टाइम का, बाद में सोशल कंडीशन कैसा था, इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन क्या होता था उसमें लिखित स्वरूप में रहता था। Now there is a oral sources is there, last sources is there, oral sources is there. We understand various aspects of the folk like a thought, folk literature traditionally passed from one generation to the another. अभी देखो जो फोक सॉन्ग मतलब जो गाना सुनते थे तो वो रिटर्न सोर्सेस में था क्या उस टाइम, नहीं, तो क्या होता था वो ओरल सोर्सेस में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे। नाउ इन द फोक ओरल सोर्स देयर इज अ फोक सॉन्ग इज देयर, देन पोवाडा इज देयर, देन गाथा इज देयर, देन अभंग, देन प्रोवर्ब, देन लीजेंड, देन मैथ्यूज आर देयर, राइम्स आर देयर. This all things are included in the oral sources. Now these oral sources is passed from one generation to the another one. Some example like ovis, then folk song, povadas, these are the oral sources, and we get information about so much information about the history
from these oral sources. Now from the Povada we are so inspired when we listen the Chhatrapati Shivaji Maharaj Povada, then Lokmanya Tilak's patriotic song, and which one freedom fighters are there, their patriotic song, if we listen then we also inspire and we also take a participation in that freedom fight, and we are involved there, we feel like we are involved there. That is a strength is come in our mind because of the oral sources. Now history is written with the help of the three types of the mentioned above sources. even after it has been written down, research on it's going continuously. मतलब हिस्ट्री डायरेक्टली लिखा नहीं जाता है, तो हिस्ट्री के ऊपर सबसे पहले क्या होता है, फेथ किया जाता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, देन यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई दिस हैपेंड, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट ऑल द प्रॉब्लम which ones are happened when you write the history, and you have to continuously write and you have to research on that things. Now sources and information come light through the research, और sources ये कम होते कब आते हैं लाइट में, जब वो रिसर्च होता है. देन हिस्ट्री हैज़ टू बी रिटन अकॉर्डिंगली. वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक एंड दोज आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंडपा डिफरेंट द सर्टन एक्सटेंट. मतलब बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं ना और ग्रैंडपा हमें ये हिस्ट्री के बारे में क्या करते हैं, ऑलरेडी बता चुके होते हैं ना, वही हम लोग क्या करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ते, तो हम लोग को वो बिलीव होता है द हिस्ट्री इज एवरीवेयर सेम, देयर इज नो एनी डिफरेंट इज देयर. इफ देयर इज अ डिफरेंट दैट हिस्ट्री इज अ फेक इज देयर. मतलब वो हिस्ट्री क्या होती है, फेक होती है. नाउ ऑल ऑफ यू सी which one things history give us. You have to preserve them, you have to take care of them. मतलब हमने उसका केयर करना चाहिए. Now see, history give us different types of monuments, statue, then fort, then museum. What you do if you go in museum, you have to throw everywhere everything here and there. You cut that nameplates. Then what happen? Which one next peoples are there? Those give visit to that museum. Then they not understand anything because you go there and you मीन्स रब इट, मतलब आपने उसको खराब कर दिया, तो वो दूसरे जनरेशन के लोग जाके उधर क्या सीखेंगे हिस्ट्री से, कुछ भी नहीं. दैट्स वाई विच वन थिंग हिस्ट्री गिव यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स. नाउ इवैक्यूलेटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, it is necessary to take the certain precaution before using the sources of history. मतलब जब भी आप हिस्ट्री यूज करते हो तो आपको उसका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का ध्यान रखना जरूरी है. वी हैव टू एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द विच वन हिस्ट्री इज देयर. हमें एक्सप्लेन करना चाहिए हिस्ट्री और एग्जामिन करना चाहिए. नाउ देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड, और हमें उस हिस्ट्री का स्टैंडर्ड भी चेक करना चाहिए. नाउ वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट. मतलब हमें वो राइटर्स का इंटीग्रिटी और उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए. द पीरियड इन विच दे हैव लिव एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ देम. मतलब कौन सा उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था और व्हाई दे राइट दिस. मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई राजा बोलता है यू डोंट राइट एनी बैड थिंग फॉर मी, यू हैव टू राइट एवरीथिंग राइट, मीन्स एवरीथिंग इज करेक्ट फॉर मी. मतलब मेरा कुछ भी गलत काम नहीं लिखने का, जो भी है वो सही काम लिखने का. तो वो ऑब्वियसली जो राइटर रहता है वो क्या होता है, उसके दबाव में आके वो लिख देता है. बट दोज हिस्ट्री राइटर्स आर देयर ना, दे डोंट गो अंडर एस्टिमेट. मतलब वो उन्होंने अंडर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए और उन्होंने क्या करना चाहिए, जो है वही क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए. Now it is also important to see the whether they really or hearsay give any eyewitness account. मतलब उन्होंने eyewitness account भी देना चाहिए उसमें, जो भी उन्होंने पीरियड्स क्या किए हैं, कैप्चर किए हैं. Now we need to consider the exhibition metaphors and literacy device they use. मतलब हमें उस कोई चीज़ों को बहुत भारी मतलब उसको चढ़ा बढ़ा के लिखना चाहिए. Then it has been seen proper perspective. The sources have to be subjected to critical analysis. The author impactfully and naturally very important writer in history. मतलब हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हिस्ट्री हमने बिना कोई मतलब एग्जाम
एग्जामिन करके या कोई रिसर्च करके नहीं लिखा तो उस हिस्ट्री को कोई भी मतलब नहीं होता है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. मीन्स हिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट. This history is passed from one generation to another generation. That's why if there is a mistake is there in the first generation, there is the same mistake is there in another one generation also. That's why which one is truth is there, that is important to write in history. Understand all of you. Now homework is there. This lesson is completed. Now homework is there. You have to write whole exercise from this the lesson, and you have to send me on my personal mobile number which one I give you. Okay, thank you all of you.